خبروں کے آغاز میں بات کریں وفاقی وزیر فوڈ اینڈ ریسرچ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ نے یونیورسٹی اسکینڈل میں لگنے والے الزامات مسترد کر دیے۔ مخالفین کو ثبوت سامنے لانے کا چیلنج کر دیا۔ اسکینڈل کی شفاف تحقیقات کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بہاولپور میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر فوڈ اینڈ سیکورٹی ریسرچ طارق بشیر چیمہ نے الزام لگایا کہ چند لوگ چند ٹکوں کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر مخالفین کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ میں بہاولپور آیا ہوں، مجھے آج دوسرا تیسرا دن ہے اور میں نے آ کر اپنے اوپر دیکھو نا، یہ کچھ چھوٹا الزام نہیں لگا، میں نے اس کی مکمل تحقیقات کی ہیں۔ یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا جنہوں نے مجھ پر الزام لگائے ہیں، اور اس کا میں نے ان سے حساب کتاب انشاءاللہ میری زندگی رہی میں کروں۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے خود کو اور اپنے بیٹے کو جوڈیشل کمیشن اور ایچ سی سی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی پیشکش کر دی۔ کہا اسلامیہ یونیورسٹی تک سڑک انہوں نے بنوائی۔ طارق بشیر چیمہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے نجی ہاسٹلز غیر قانونی کام میں ملوث ہیں، ان کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ ملتان میں سیکرٹری RTAN ایکشن لاری اڈے پر 70 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری جگہ واگزار کرا لی۔ غیر قانونی پارکنگ کرنے پر 72 گاڑیاں بند اور 2 لاکھ سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ لاری اڈے پر ٹریفک کی روانی کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ بھی کر دیا گیا۔ شہر ملتان کے لاری اڈے چوک کو غیر قانونی اڈوں اور پارکنگ مافیا سے پاک کرانے کے لیے ضلعی انتظامیہ ان ایکشن لاری اڈے چوک پر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری RTA رانا محسن کا کہنا تھا کہ لاری اڈے پر 70 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی سرکاری گرین بیلٹ کی جگہ واگزار کرا لی گئی ہے۔ ایڈی چوک میں جو ٹریفک کے سنگین مسائل کی وجہ سے DC صاحب نے ایک میٹر ٹیک اپ کیا تھا، انہوں نے اس کا نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد ایک ڈیٹیلڈ اس پہ میٹنگ کر کے اس کا جو گرین بیلٹ کا ایشو تھا، جو متعدد جگہوں سے بزنس مینس نے یا ٹرانسپورٹرز نے یا مارکیٹ والوں نے توڑے ہوئے تھے، ان رستوں کو واگزار کروایا گیا، جن کی تقریباً مالیت جو ہے وہ 70 کروڑ روپے کے قریب بنتی ہے۔ سیکرٹری RTA کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی طور پر سواریوں کے لیے بڑی گاڑیاں کھڑی کرنے کی وجہ سے لاری اڈے چوک پر ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا تھا، جس پر ایکشن لیتے ہوئے 72 سے زائد گاڑیوں کو بند کر دیا گیا اور 2 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا۔ لوگ وہاں پہ بسیز، کاریں، ٹیکسیز، کیبس وہاں پہ پارک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے ہنگم سی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو اس کو بھی DC صاحب نے ٹیک اپ کیا میٹر کو، اور وہاں پر اس کی روک تھام کے لیے 144 کا نفاذ لگایا ہے، جس کے بعد الحمدللہ وہاں پہ اب آپ پرسنلی طور پہ ویڈی چوک کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ٹریفک کا پرابلم نہیں ہے۔ سیکرٹری RTA رانا محسن کا کہنا تھا کہ لاری اڈے چوک پر ٹریفک کی روانی کے مستقل حل کے لیے ٹریفک پولیس اور RTA ٹیم 2 جگہوں کا تعین کر رہی ہے، جہاں پولیس اور ٹریفک کی چیک پوسٹ بنے گی تاکہ ٹریفک جام نہ ہو۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ بہاول نگر میں آکوکا، ماڑی میاں، صاحب بہادر کا، چابے کا اور میں کٹاؤ جاری ہے۔ لٹن میں موزہ کھجی والا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ مہر آباد، سلدیرہ، بستی رحیم اور بستی نادر علی ڈوب گئے۔ ہائی وے میں شگاف پڑ گیا، زمینی راستے منقطع، لوگوں کو نقل مکانی میں مشکلات کا سامنا۔ ریسکیو ٹیمیں بھی فیلڈ میں موجود ہیں۔ خبر ہے ہارون آباد سے، جہاں نوائی گاؤں 53-4RO41R کے قریب سیم نالا بکھر گیا۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں زیر آب آ گئیں، جبکہ انتظامیہ اطلاع کے باوجود موقع پر نہ پہنچ سکی۔ ہارون آباد کے نوائی گاؤں 53-4R قاضی والا روڈ پر سیم نالا میں شگاف پڑ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ کپاس اور دیگر چارہ جات کی فصلیں زیر آب آ گئیں اور چک 41R میں گندم خریداری کا مرکز بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ کاشتکاروں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اطلاع کے باوجود انتظامیہ تاحال موقع پر پہنچ نہ سکی۔ شام سے ہمارے گاؤں کا یہ جو ساچ سیم نالا گزر رہا ہے، اوور فلو کر رہا ہے۔ گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کافی کوشش کی ہے، لیکن کسی صورت بھی اسے باندھنے میں ناکام ہے۔ ہم نے متعلقہ DC آفس، AC آفس، متعلقہ کام سے بھی ریکویسٹ کی ہے، ان سے اپیل بھی کی ہے، لیکن ابھی تک کسی نے ہمارے پاس نہ ہی تو آگے کوئی داد رسی، نہ ہی پوچھنے والا۔ اس پانی کی وجہ سے ہمارے گاؤں کو اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شام تک پانی یہ گاؤں میں داخل ہو جائے۔ گندا پانی ہے، جس کی وجہ سے بیماری اور فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت پانی کا اخراج کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔
मेरा बाला काम से एक ही मुतालबा है, हम रात के सब इधर नौजवान लड़के आए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये पानी बंद नहीं हो रहा। बहुत मेहनत की, किसी तरह पानी ज़्यादा है, पानी पीछे से ज़्यादा छोड़ा जा रहा है, इसी वजह से गांव के साथ पानी जा लगा है। अभी गांव के बाज़ गार ऐसे हैं जो पानी के अंदर हैं, पानी घरों में घुस गया है। लिहाजा मेरा बाला काम से एक ही मुतालबा है सर, हमारा दादरसाई की जाए, हमारे गाँव से पानी निकाला जाए। सेम नाला के ओवरफ्लो होने की वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए सेम नाला की सफाई का इंतजाम करे ताकि कपास समेत दीगर फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। वासा मुल्तान का शहरियों की सेहत से खिलवाड़। अलजलान रोड मोहल्ला शाह मूरत वाला का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। अहले इलाका साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आलूदा पानी पीने से सेहत के मसाइल गंभीर होने लगे। शहर औलिया के बासी साफ पानी को तरस गए। अलजलान रोड मोहल्ला चाह मूरत वाला का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब है। मशीनरी और इमारत खस्ता हाली का शिकार, टूटियां भी गायब हैं। शहरियों का कहना था कि साफ पानी दस्याब न होने की वजह से सेहत के कई मसाइल का सामना है। पानी के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। फिल्टर पानी के प्लांट के लिए गंदगी भी देख लें कितनी गंदगी है। और ये वज़ीर आला जब पंजाब परवेज इलाही बना था, जब से ये फिल्टर बंद पड़ा है और इसकी कोई ज़ेरे निगरानी कोई नहीं है। इलाके में बदबू बहुत ज़्यादा फैल रही है, बीमारी है, मच्छर और पानी की मुश्किलात का सामना किया जा रहा है। बहुत दूर दूर से पानी भर के लेके आना पड़ता है। शहरियों का मजीद कहना था कि दूर दराज से पानी भर कर लाना मुश्किल है, इसलिए वो मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर है। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्लांट को अभी तक ताले लगे हैं। अब देखो कितनी शदीद गर्मी है और पानी के लिए हमने काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है और उतने दफ़ा कहा है, लेकिन एक दफ़ा तीसरी हुकूमत अब आ चुकी है, असर नहीं पड़ रहा। अब इसके आगे क्या होगा? अब तो हम तो यही कहते हैं इसकी ईंटें उठा के ये ले जाए, इनकी पूरी पड़ जाए, बस हमारे को पानी तो मिल नहीं सकता। शहरियों ने वासा इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली शाह बोर्ड वाला का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। अहले इलाका साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुल्तान के इलाके चाह बोर्ड वाला का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है, जिसकी वजह से इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम है। शहरियों का कहना था कि 2.5 साल से प्लांट बंद पड़ा है, पानी खरीदना पड़ता है या फिर दूर से लाना पड़ता है। काम करे सरकारी मुलाजमीन इस मुल्क के जो है, जो इतने टैक्स बिजली के बिलों में हमसे ले रहे हैं, वो जहाँ साफ पानी नहीं मुहैया कर सकते। ये किस किस्म की गवर्नमेंट है? ये किस किस्म का कानून है? ये चाह बोर्ड स्कूल के साथ है, बच्चियाँ हैं वो ठंडा पानी पीती हैं। इस वक्त तो स्कूल बंद है लेकिन 20 तारीख से खुल रहे हैं। जनाब वाले जो और अहले इलाका परेशान है। ये वाटर प्लांट काफ़ी अरसे से बंद पड़ा, पानी की हमें बहुत मुश्किलात पड़ती है। मोल पानी लेते हैं, मेहरबानी करके वाटर प्लांट को सही करवाया जाए। इलाका मरकीनों का मजीद कहना था कि वाटर प्लांट साफ पानी के लिए लगाए जाते हैं मगर इन्हें कोई सहूलत नहीं मिल रही। साफ पानी मुयस्सर न होने की वजह से बच्चे और बड़े बीमार हो रहे हैं। जितने भी हुक्मरान है सोए पड़े हैं कि इनको कोई अवाम का दर्द नहीं है, इनको किसी किस्म का कोई दर्द नहीं है। कम से कम पानी की सिर्फ बुनियादी चीज़ पानी है, वो जीने के लिए पानी तो कम से कम दिया जाए ना। ये देखो हालत क्या हुई है। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। खानेवाल के शहरियों ने इतवार के रोज सैर के लिए सिटी पार्क का रुख कर लिया है, लेकिन पार्क में स्ट्रीट लाइट्स ना होने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहते हैं इंतजामिया की नाअहली की वजह से इतवार की छुट्टी का सारा मजा किरकिरा हो गया। खानेवाल के शहरी फैमिलीज के साथ तफरीह के लिए सिटी पार्क पहुंचे तो पार्क अंधेरों में डूबा हुआ था। शहरियों का कहना था कि दिन के वक्त गर्मी और हब्स के बायस तफरीह के लिए नहीं आ सकते, रात को सैर के लिए आए हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से सारा प्रोग्राम चौपट हो गया है। इतवार की छुट्टी थी, मौसम सुहाना था तो हम यहाँ सैर सफरी के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट्स का इंतज़ामात बहुत गलत हैं। लाइट बहुत बंद हैं, लेकिन इधर ना सफाई के इंतज़ामात हैं, ना कोई इधर अमला मौजूद है। उसके अलावा झूले वगैरह देखें तो कल पूरे झूलों के पास पानी खड़ा हुआ था, कोई साफ़ करने वाला नहीं है। इंजॉय तो कर रहे हैं, मसाइल यही है कि इधर जो है ना सफाई का निज़ाम होना चाहिए, घास घूस काटने का प्रॉपर देखभाल, लाइटिंग का भी इस पे तवज्जो की जरूरत है थोड़ी सी। बच्चों का कहना था कि वो एंजॉय करने आए मगर पार्क की हालत जार देखकर दुख हुआ। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ कैंटीन वाली साइड पे लाइट है, लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे हैं।
शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया की नाहिली के बायस वो तफरीही मकाम से महरूम हैं। इतवार की छुट्टी का सारा मजा किरकिरा हो गया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। यहाँ आपको बताया मुल्तान में तजावुजात माफिया का राज, इंतजामिया के ऑपरेशन कागजी रह गए हैं। मुल्तान इंतजामिया बेबस, तजावुजात माफिया का कोई हल ना निकाला जा सका। पुराना शिजाबाद रोड पर तजावुजात के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। सड़क के दोनों अतराफ रेडी बानों ने कब्जा कर लिया। तजावुजात इतनी है कि आधे से ज्यादा रोड तजावुजात ने घेरा हुआ है, तो गुजरने में तंगी होती है। अगर एक रिक्शा आ जाए तो उसके साथ दूसरा रिक्शा जो है ना गुजरना वो भी मुश्किल हो जाता है। बाज़ इतनी तजावुजात होती हैं। तो कमिश्नर मुल्तान से हम ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करें। शहरियों का कहना था कि एक तरफ रोड टूट फूट का शिकार है, रही सही कसर तजावुजात माफिया ने पूरी कर दी है। सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। मेन जो है ना रोड का मसला तो चल रहा है ना, अब इसको जो है ना ये इनको चाहिए कमिश्नर को रोड भी बनवाया ना। यहाँ पे सारे खड्डे वगैरह धक्के हैं पड़े, रोड से जैसे गुजरते हैं वो जंप शंप लगते हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से तजावुजात का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गल्ला मंडी के ताजिर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने पर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हर किस्म के टैक्स देने के बावजूद गर्मी से बुरा हाल है। हुकूमत गैर जरूरी टैक्स खत्म करे। गल्ला मंडी मुल्तान के ताजिर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ताजिरों का कहना था कि बार बार लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। सदर गल्ला मंडी राजा मुतसिर का कहना था कि हर किस्म के टैक्स देते हैं फिर भी गर्मी से बुरा हाल है। बहुत ज़्यादा बिजली महंगी हो चुकी है। क्या मजबूरी है IMF के पास जाना पड़ता है। 25 साल हो गए आप लोगों को ये झूठे वादे कर के। IMF आवाम मर रही है, आप नहीं मर रहे। आपका कुछ नहीं हो रहा। आप फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री अलाउंस ले रहे हैं, रिहाइशें फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, टैक्स हम भर रहे हैं। तीसरी आवाम है। बिजली इसलिए महंगी करी है आपने, अब बिजली पूरी नहीं दे रही। गैर एलानिया लोड शेडिंग है, गर्मी से बुरा हाल है। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से चक्कियां बंद पड़ी हैं। कमाएंगे नहीं तो बिल कैसे अदा करेंगे। बिल इतने आ रहे हैं जी, हम चक्कियां चलाएं या बिल भरें या बच्चों का पेट पालें या फीसें भरें। अफसरान बाला जो हैं उनकी गाड़ियां फ्री है, पेट्रोल फ्री है, गैस फ्री है, सारी बिजली फ्री है। हम किधर जाएं? या तो हमें वैसे मार दें। ਐਤਕੀ 49,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ कि 900 यूनिट। मेरे घर एक मोटर है, 2 पखे, एक बल्ब है, बस 9 बजे वो भी बंद हो जाते हैं, एक पखा चलता है। 49,000 का बिल, आप मीटर काटने आ गए हैं। मैंने मीटर नहीं काटने दिया तो वो मेरे पे कह रहे पर्चा करा देंगे, बिल ना भरोगे तो तुम। कैसे भरूंगा? 49,000 में मजदूरी करता हूँ 700-800 की। ताजिरों ने हुकूमत से बिजली के बिलों में गैर जरूरी टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। और मैट्रिक के तलबा हो जाएं तैयार। पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान आज सुबह 10 बजे करेंगे। जनूबी पंजाब के तलबा अपना रिजल्ट मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल फोन SMS के जरिए मालूम कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं कि मैट्रिक के इम्तिहान का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे दिया जाएगा। पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान आज सुबह 10 बजे करेंगे। जनूबी पंजाब के तलबा अपना रिजल्ट मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल फोन SMS के जरिए मालूम कर सकेंगे। बात करें रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर सुहेल चौधरी का एहसन इक़दाम मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन बरकरार रखने पर पुलिस अफसरान एहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजने का ऐलान कर दिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान की जानिब से रीजन में तैनात स्पेशल ब्रांच CTD और एलीट फोर्स को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। पेट्रोलिंग पुलिस समेत तमाम यूनिट्स के अफसरान और नौजवानों को भी तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। तारीफी सर्टिफिकेट की बदौलत मुलाजमीन की सजाओं में कमी होगी, क्योंकि पुलिस अफसरान और जवानों की रोज मेहनत से ही आशूरा के दौरान अमन मुमकिन हुआ। मुल्तान, खानेवाल, लोथरा और बिहाड़ी के इलाकों में भी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाएंगे। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के तमाम जुलूस और मजालिस पर अमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। CPO मुल्तान का मुहर्रम में ड्यूटी देने वाले पुलिस अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, महाफिज स्क्वाड सब ने मिलकर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए। ट्रैफिक पुलिस, पंजाब कांस्टेबलरी और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस के एहलकारों ने बेहतरीन ड्यूटी दी। स्पेशल ब्रांच, पाक फौज, रेंजर्स और दीगर एजेंसीज के अफसरान और मुलाजमीन ने अपनी ड्यूटी दी। तमाम
दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन, जिला इंतजामिया, लोकल गवर्नमेंट्स का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। तमाम मकातब फिक्र के रहनुमा, अमन कमेटी, खास तौर पर मीडिया नुमाइंदगान ने अहम किरदार अदा किया है। सब ने मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम में अपना किरदार अदा किया। यहाँ बात करें जनूबी पंजाब के सियाहों के लिए अच्छी खबर। फोर्ट मंटरू में मौजूद शंग्रीला झील की तरह डैम्स झील पर भी पार्क वेज बनाए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल कोहिर सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी डेरा गाजी खान डिवीजन बाबर बशीर ने अफसरान के हमरा झील का दौरा किया। उनका कहना था कि फोर्ट मंटरू को हकीकी मानों में जनूबी पंजाब का मरी बनाएंगे। डायरेक्टर जनरल कोहिर सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी बाबर बशीर फोर्ट मंटरू को सियाहों के लिए पुरकशिश जगह बनाने के लिए मुतहरिक हो गए। डेमस झील पर पार्क वेज बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने डेमस झील का तफसीली दौरा किया, सफाई सुथराई और लाइटिंग समेत दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि डेमस झील शंग्रेला झील की तरह खूबसूरत है, यहाँ भी सियाहों को शंग्रेला झील जैसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये साउथ पंजाब की सबसे खूबसूरत और बड़ी झील में आती है और फोर्ट मनरो के जो है ना सियाती मुकाम की एक दिलकशी में इजाफा करती है। कोहिर सुलेमान जो अथॉरिटी है वो पार्क वेज बनाना चाह रही है। पार्क वेज में बुनियादी तौर पे होता ही है कि फैमिलीज़ के लिए उसमें एक खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया जाता है, रेस्टिंग एरिया होता है और उसमें वाशरूम्स वगैरह होते हैं और ये कि वहाँ की सहूलत के लिए हम वहाँ पर ट्रक शॉप भी बना देते हैं। डीजे खान कोहिर सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी बाबर बशीर का मजीद कहना था कि फोर्ट मंटरू और डेमस झील समेत दीगर सियाहती मकामात पर भी पार्क वेज बनाए जाएंगे। डेमस झील में कश्तियों और वॉशरूम समेत तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। फोर्ट मंटरू को हकीकी मानों में जनूबी पंजाब का मरी बनाएंगे। कैमरामैन हुसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, फोर्ट मंटरू। दुनिया में 60 ममालिक कपास पैदा करते हैं। पाकिस्तान कपास की पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पर है, जबकि रुई की आलूदगी के हवाले से दूसरे नंबर पर है। आलूदा कपास की वजह से आलमी मंडी में पाकिस्तानी रुई की कीमत 2 से 3 सेंट फी पाउंड कम लगती है। इस हवाले से देखिए जहानिया से अमजद हुसैन बूटर की ये रिपोर्ट। महकमा ज़राअत पंजाब ने कपास की साफ चुनाई बारे खुसूसी एडवाइजरी जारी कर दी। आलूदगी से पाक कपास के असूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए ज्यादा ज़रे मुबादला भी कमाया जा सकता है। कपास की गलत चुनाई से फुटी की क्वालिटी और मियार मुतासर होता है। महकमा ज़राअत के मुताबिक कपास की चुनाई हमेशा इस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल खत्म हो जाए। खवातीन सर पर सूती कपड़ा लेकर बालों को अच्छी तरह ढांप कर चुनाई करें ताकि सर के बाद रुई में मिलकर रुई की क्वालिटी खराब ना हो। कपास को सिर्फ सूती कपड़े के बोरों में रखें। सूबा पंजाब में कपास की चुनाई जारी है। महकमा ज़राअत के तहत काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि कपास की चुनाई साफ सुथरी और अलैशों से पाक कराएं। चुनाई तरबियत याफ्ता सुपरवाइजर की निगरानी में कराएं। कपास को गीली जगह पर हरगज न रखें। काश्तकारों को यह भी कहा जा रहा है कि चुनाई की उजरत सिर्फ साफ चुनाई की बुनियाद पर दी जाए, न कि वजन की बुनियाद पर। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशंस को हदायत जारी की गई है कि वो मौके पर जाकर फसल की चुनाई पर मामूर सुपरवाइजर और चुनाई करने वाली औरतों को अमली तरबियत दें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। मौसम सरमा के फूल गुले दाऊदी की गमलों में मुंतकली का वक्त आ गया। शदीद सर्दी में खिलने वाले मौसम फूलों की तैयारी हो चुकी है। जुलाई में शुरू होती है। फरवरी में जमीन में लगाए गए फूलों के सिकर्स को उन दोनों गमलों में मुंतकिल किया जाता है। मौसम सरमा के फूल गुलदाउदी की तैयारियां अभी से शुरू हो गईं। ये फूल खिलता तो शदीद ठंड में है, लेकिन तैयारियों का आगाज शदीद गर्मी से हो जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर मोहम्मद ताहिर का कहना था कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में सकर्स को गमलों में मुंतकिल करने से फूल अच्छे खिलते हैं। इन्होंने कहा कि इसके बाद गमलों को हवादार और सायादार जगह पर रखा जाए। रवां साल भी 14 से ज्यादा अक़साम से दर्जनों रंग बिरंगे फूल खिले हैं। राउंड द ईयर जो है वो एक शेड्यूल के तहत जो है ना तैयारी की जाती है। फरवरी के आगाज़ में इसके शक्कर निकलना शुरू हो जाते हैं और मार्च में जो है आप इसके शक्कर ज़मीन में जब लगा लेते हैं तो 3-4 महीने ज़मीन में रहने के बाद आप इनको जो है जुलाई में निकाल के वो दोबारा गमलों में जो है शिफ्ट करेंगे। महकमा ज़राअत फ्लोरिकल्चर में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के इंटर्निस्ट का कहना था कि गुलदाउदी के फूल की मुंतकिली के अमल को सीख रहे हैं। आज हमने गुलदाउदी को शिफ्ट किया फील्ड से पॉट्स में और ये बहुत अच्छा ही प्रोसेस है इसका। और ये जो है जुलाई के एंड में बरसात पहले हम ये कर लेते हैं ये प्रोसेस और इसको हम खुली जगह पे रखते हैं, शेडी और एयरेटेड जगह पे। इसे पानी से बचाना है, पानी में ये प्लांट डैमेज हो जाता है। नवंबर के इख्तिताम तक गमलों से गुलदाउदी के फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, मुल्तान।
इस रिपोर्ट के साथ ही खबरों का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही।